ایک پرسنل بہت ڈیپ انٹرسٹ ہے قیدیوں کے معاملے میں، کیونکہ ہر کشمیری ایک قیدی ہے، اسے دنیا کا سب سے بڑا اوپن پرزن ہے جس کے اندر ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی جرنی ہیومن رائٹس کے حوالے سے، چاہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو، مردوں کے حقوق کی بات ہو، بچوں کے حقوق کی، ڈسیبلڈ پرسنس کی بات ہو، چاہے وہ لائرز کے حقوق، چاہے وہ میڈیا پرسن، چاہے کسی کے بھی ہوں، مگر اس سے بھی بڑھ کے مجھے تھا کہ میں سب سے پہلے قیدیوں سے شروع کروں گی، جا کے ان کو سنوں گی، ان کی جو پرابلمز ہیں، کیا ان کو چیزیں ضرورت ہیں. اور میں نے یہاں دورہ کیا ہے عورتوں کے بھی جیل کا، ان کے بھی بیرک کا کیا ہے کنڈیشن، کیونکہ میں صفائی ستھرائی یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں، یہ بھی انسان ہیں اور ان کو بیسک فیسلٹیز، نیوٹریشن، کھانا پینا، ووکیشنل ٹریننگ، اور جو کہ ایک انٹرنیشنل سگنیٹریز بھی جو ہیں اور جو کنونشنز ہیں رائٹس آف پرزنرز کے حوالے سے، وہ ساری میں نے دیکھی ہیں. اور کافی چیزوں میں سیٹسفائیڈ بھی ہوئی ہوں یہاں پہ. اسپیشلی میں نے ایک پرزنر کو، جو مجھے کافی ٹائم ملا ہے کیونکہ میں نے ایک پرزنر کو جا کے مل کے ان کی جو اسپیشلی جو ویمن بیرکس کے اندر ہیں ان کے، اور جو بچے ہیں جوبنائل جو پرزنرز ہیں یہاں پہ، ان کی کیا سزائیں موسٹلی منشیات کی نکل رہی ہیں، ڈکیتیوں کی نکل رہی ہیں، اور جو کنوکٹڈ ہیں اور جو کنوکٹڈ نہیں بھی ہیں ان کی صورتحال. اور آئی ایم گلیڈ کہ کلیننس ہی وہاں پہ ان کو بیڈنگز ان کی ٹھیک ہیں، اور ٹوائلٹس بھی جا کے میں نے خود دیکھے ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کی میس، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری ایک ان کی جو ورشپ کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جو پریئر روم ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، پھر ایک لائبریری ہے وہاں پہ کتابوں کی، وہ بھی میں نے دیکھی ہے. وہاں پہ جو ووکیشنل ٹریننگز بھی دی جا رہی ہیں، ووکیشنل سکلز بھی، اور ساتھ ساتھ کمپیوٹر سکلز جو ٹیکنیکل سکلز بھی دی جا رہی ہیں. اور ایک چیز جو میں پوچھا تھا وراج صاحب سے کہ کیونکہ ہم لوگوں نے خود بڑا سفر کیا ہے ایز کشمیریز اور کشمیری پرزنرز جو ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان کی جیلوں میں جو ہیں وہ پرزنرز ہیں وہاں پہ، چاہے وہ یاسین صاحب ہوں، چاہے وہ ہمارے کشمیری حریت رہنما. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو یہاں ہائی پروفائل پولیٹیکل پرزنرز بھی آتے ہیں، یا جو اور بھی پرزنرز آتے ہیں جو کنوکٹڈ ہیں، جو ڈیتھ سیلز کے اندر ہیں، کیا اجازت ہے ان کی فیملیز کو ان سے ملنے کی؟ اور انہوں نے مجھے ان کی پھر وہ ویڈیو کیمرہ پہ بھی دکھایا، کیونکہ میں پاسبل نہیں تھا کہ 2 گھنٹوں کے اندر میں سارے پرزنرز کو 1 to 1 ملوں، مگر جن ڈائریکٹس میں مجھے لے کے گئے ایک پرزنر سے میں نے خود بات کی ہے، ان کی پرابلمز، ان سے سب سے میں نے پوچھا ہے کہ لیگل اسسٹنس ملتی ہے، کیونکہ لیگل اسسٹنس ملنا بھی ایک کشمیری کے لیے انڈر انڈین آکوپیشن ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور اگر مل بھی جائے لیگل اسسٹنس تو اس لائر کو ہی مار دیا جاتا ہے، یا اس کو بیمار کر دیا جاتا ہے، یا اس کو بالکل ہی وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، تھریٹ کر دیا جاتا ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جتنے بھی اور بھی کیسز جتنے بھی آتے ہیں، فیملیز کو ملنے کے لیے بھی ٹائم ہے، ہفتے میں 2 دفعہ ملنے کا ٹائم ہے. اور جو پھر اس کے بعد جو ڈیجیٹائزیشن کے تھرو جو سارا کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے، جو سامان پرزنر کو دیا جاتا ہے جو فیملی کی طرف سے، یا جو پیسے جمع کروائے جاتے ہیں، وہ سب ڈیجیٹائزیشن کے تھرو اکاؤنٹس میں جمع کیا جاتا ہے، اور سارا کمپیوٹرائزڈ ہے کہ جو بھی قیدی کو ملنے فیملی والے آتے ہیں وہ ان کو میک شور کرتے ہیں کہ جو وہ چیزیں ان کو دے رہے ہیں اس کی پوری ایک سلپ ہو، جس کے اندر اگر ایپلز ہیں، سبزی ہے، پھل ہے، کپڑے ہیں، وہ سارے کے سارے ریکارڈ میں آ جاتے ہیں. اور پھر جب وہ ملتے ہیں پرزنر کو تو وہ میں نے ان سے پوچھا کنفرم کون کرتا ہے، تو ان کا یہی ریکارڈ ہوتا ہے، اسی کے تھرو پھر ہم اس کو جب وہ ریسیو کر لیتے ہیں تو وہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اوپن جمز ہیں، اور بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ایک اگر پرزنر ہے چاہے وہ کافی سال اس سے رہنا ہے تو ریہیبلیٹیشن، اس کی کاؤنسلنگ کرنا اور اس کو ایک بہتر انسان بنانا، چاہے وہ ساری عمر یہاں پر ہے، چاہے وہ عمر قید کی سزا ہو، مگر وہ ہے تو انسان. اس کو کتابیں پڑھنے کا، اس کو ٹی وی دیکھنے کا، اس کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو تعلیم اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تھرو اجازت ہے. یہ جو فیسلٹیز یہاں دیکھی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا ہے اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کیونکہ کرونا کے وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر UN سیکریٹری جنرل نے بھی کافی اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی کہ جو جیلز ہیں اس کے اندر اوور پاپولیشن جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ اوورلی پاپولیٹڈ ہے ہندوستان کی جیلیں، جس میں ہزاروں کیا لاکھوں کشمیریوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. تو جب میں یہاں پر آئی میرا پہلا سوال ان سے یہی تھا کہ کیا یہ اوور پاپولیٹڈ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ہم ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں مگر ابھی تک جو ہے اسلام آباد کا جو جیل ہے وہ ابھی تک نہیں کنسٹرکٹ ہوئی ہے. تو اسلام آباد کی بھی پرزنرز یہاں پر آ رہے ہیں، 6800 کے لگ بھگ یہاں پہ جو پرزنرز کو انہوں نے یہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے. مگر یہ ان کا ویلڈ ہے جو میں پرائم منسٹر کے ساتھ بھی یہ ٹیک اپ کروں گی کہ
जो प्रिजनर्स हैं उनकी जो शिफ्टिंग की जाए 3 टाइम्स ज़्यादा है, वो बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है सबको केटर करना। हालांकि इनके पास अराउंड 150 कैमराज हैं एंड दे डिमांडिंग मोर। ये तो इनका इंटरनल है, मगर हर जगह जो वॉच किया जाता है तो कहते हैं बहुत ज़्यादा विजिलेंस और भी चाहिए होती है, क्योंकि हर तरह की बातें हो सकती हैं। प्रिजन्स हैं, हाई सिक्योरिटी जोन्स हैं, फिर उनके ऊपर चेक भी रखना होता है। तो एक तो ये बात है, और दूसरी KPK के बहुत से जो प्रिजनर्स 500 के लगभग हैं KPK के जो प्रिजनर्स यहाँ पर हैं, उनको भी वो कह रहे हैं कि जो उनके इलाके हैं उनके अंदर उनको शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि उनकी जो फैमिलीज आती हैं दूर दराज इलाकों से, तो वो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इनके वो जायज़ जो बातें हैं, जो कि मैंने खुद भी जो वहाँ पे जो पॉइंट्स देखे हैं, नोट किए हैं, उसमें भी मुझे ये सबसे इम्पोर्टेंट लगा है कि ओवर पॉपुलेटेड होना, और फिर उसके साथ साथ जो बच्चों को जिस तरीके से जुवेनाइल प्रिजन्स में मैं गई वहाँ पे भी बच्चों से एक को मिल के वहाँ जो करें, बहुत से उनको टेलरिंग की स्किल्स सिखाई हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर वो CV बनाना सिखाया जा रहा है उनको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको शैतान नहीं बनाना, उनको सिर्फ गिल्ट में नहीं रखना होता अगर एक प्रिजनर को आपने रखा है, बल्कि उसकी काउंसलिंग की जाती है, चाहे उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, चाहे उसकी स्पिरिचुअल काउंसलिंग है, चाहे उसकी फ़िज़िकल जो न्यूट्रिशंस हैं। और बच्चे भी हैं, बहुत सी औरतों के यहाँ पे बेबीज़ हैं और छोटे छोटे अंडर एज बच्चे हैं जिनकी पैदाइश भी यहीं पर हुई है, और बहुत से केसेस जो हैं मर्डर के मंशियात के हैं। मगर फिर भी ये मैं उनकी, क्योंकि मैंने उनके साथ अकेले में भी बात की है टू मेक श्योर कि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो किसी की तरफ से, तो मैंने उनसे जो बातें की हैं आई टेक। बट बात ये है कि यहाँ पे आके मुझे इस चीज़ का और भी ज़्यादा एहसास हुआ है, क्योंकि हमारी तो आंख खुली है मकबूजा कश्मीर के जेलों में, प्रिजन्स में। यासीन साहब का दूसरा नहीं पहला घर ही जेल है। तो जेल में जब मैंने भी जाना होता था, या मेरी बेबी ने भी, तो हमें भी जिस तरीके से बॉडी सर्च किया जाता था, ख़ास तौर पे बेटी को। और अब भी वो एक डेथ सेल में, मैंने ख़ास तौर पे डेथ सेल्स का भी इनसे पूछा, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स का। तो जो वहाँ का अगर मैं कंपेयर करूँ तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स हैं ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, जो जनीवा कन्वेंशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें तो कोई राइट ही नहीं मिला। ये टेलीफोन की बात करते 4.5 साल से यासीन साहब से कोई इजाज़त ही नहीं है कि हम उनसे टेलीफोन के ऊपर भी बात कर सकें, कोई लेटर भेज सकते हैं, कोई फैक्स, कोई उनसे मुलाकात कर सकें। और फिर उसके साथ साथ ना उनका कोई लॉयर है, और सबसे बढ़ के फिज़िकली प्रोड्यूस नहीं किया जाता उनको जेल से। और जब उनको लेके भी एक दफ़ा गए सज़ा सुनाने के लिए लेकर गए, और दुनिया की अभी जो लेटेस्ट जो लेटर आया है एमनेस्टी इंटरनेशनल और 5 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ, कि अगले महीने वो जो G20 का समिट कर रहे हैं वहाँ पे, उसके अंदर उन्होंने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहा है कि उससे पहले जो वहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनको रिलीज़ कराया जाए, जो कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे भी बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पाकिस्तान के, उनका भी मैंने पता किया, जो हाई प्रोफाइल हैं, तो उनका भी जो मुझे रिपोर्ट्स आई हैं कि मोस्ट ऑफ देम, सारों का जो मेन थोड़े से ही हाई प्रोफाइल, कि उनको मुलाकात की इजाज़त है, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से इजाज़त है, उनको लॉयर रखने की इजाज़त है, टेलीफोन पे बात करने की इजाज़त है, उनको लेटर भेजने की, उनको घर से कुछ चीज़ें भेजने की। तो ये हमारे लिए, कश्मीरियों के लिए ये एक मुआवजा है कि इस तरह के राइट्स हमें दे दिए जाएँ। इवन मुझे याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जब फांसी देने लगे थे, उससे पहले भी उनकी वालदा, उनकी जो बेटी थी, वो उनको खुद वहाँ पे मिलने जाती थी। और ये आलम ये है कि हम लोग यहाँ पे सड़कों के ऊपर अपने राइट्स मांग रहे होते हैं, मगर वहाँ पे टस से मस नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ कि ये दुनिया को भी एक पैगाम देना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के भी जो प्रिजनर्स हैं, ये मत समझें कि मैं एक प्रिजन में आई हूँ, मैं दूसरों में नहीं आऊँगी, मैं सब में जाऊँगी, क्योंकि हमारे लिए ये सबसे बड़ी इबादत है ह्यूमन राइट्स। और चाहे उसके अंदर कोई भी हो, चाहे वो कन्विक्टेड क्यों ना हो, सज़ा याफ्ता क्यों ना हो, डेथ पेनल्टी पे क्यों ना हो, जो उनके राइट्स हैं वो राइट्स उनको मिलने चाहिए। बहुत से मैटर्स सब जुडिस हो जाते हैं साल कोर्ट्स के अंदर भी इतने ज़्यादा केसेस होते हैं, जजेस कम होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक मैटर होता है कि टाइम पे जस्टिस नहीं मिलता। तो यहाँ से मैंने इनसे भी कहा है, रिक्वेस्ट की है कि जो यहाँ के प्रिजनर्स हैं, ख़ासतौर पे इधर इनके जो लीगल केसेस हैं, उनकी फ़ाइल जो है उनको हमें फॉरवर्ड करें। तो हमारी पूरी जो लीगल टीम है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हम उसको चेक करेंगे, जो रिफॉर्म्स हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को हम देंगे। और ये एक इंटरिम सेटअप है और ये टेम्प्रेरी है, और ये एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप है, और इसके अंदर जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए ये एक इबादत है ह्यूमन राइट्स, चाहे वो आपके राइट्स हों, चाहे वो किसी के हों पाकिस्तान में,
जिस हद तक मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी होता है कि अचानक भी दौरे किए जाएँ, कैमरों की तरफ वहाँ पे हालात देखे जाएँ। मगर जो मेरा पहला दौरा हुआ है इसके अंदर भी ये मैंने फ्यू आवर्स पहले इनसे बात की है कि मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ, और मेरे लिए ये मतलब कि ये मैंने स्टार्ट ही जेल से ही करना था मैंने, क्योंकि मेरा पैगाम भी यही है कि हर जो इंसान है वो इक्वल है, चाहे वो जेल का प्रिजनर है, चाहे वो किसी भी मल्टी नेशनल के अंदर कोई ऑफिसर है, या कोई स्टूडेंट हो किसी यूनिवर्सिटी में जिसको हरास किया जा रहा है, मेरे लिए सब बराबर है। और जो कंप्यूटर पोर्टल इन्होंने बनाया उसका पूछा, जो कंप्लेंट सेल जो सिस्टम बनाया इन्होंने, जिसके थ्रू प्रिजनर्स हैं जो अपनी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो सारी रिकॉर्डेड होती हैं कॉल्स और डायरेक्ट आईजी को जाती हैं, वो जो सारा सिस्टम है मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो सारी उसका जो डिटेल्स भी और उसका पूरा का पूरा जो प्रपोजल है वो हमें सेंड करें, हम खुद भी उसको चेक करेंगे और अपनी तरफ से भी जो हमारी बॉडी है वो उसको मॉनिटर करें। मेरे लिए चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो कोई आम कैदी क्यों ना हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे कोई फ़कीर हो, जिस तरह बहुत से बेगर्स भी मैंने यहाँ पे देखे जिनको कैद किया हुआ है, सब मेरे लिए बराबर हैं। मगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जहाँ तक बात होती है, क्योंकि हम खुद एक पॉलिटिकल तहरीक को चला रहे हैं और हम जिस तरह विक्टिमाइज हुए हिंदुस्तान की ब्रुटैलिटी, उसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात हो जाए, चाहे वो नेल्सन मंडेला की हो जाए। मगर जिस तरीके से पामाल किए गए हैं, ख़ास तौर पे यासीन साहब के जो राइट्स थे कि वो अपना जो केसेस हैं वो अपने आप को डिफेंड करते, या उनको जिस तरीके से एक डेथ सेल में, और वो डेथ सेल 5/7 फीट का है, और आपका कितने का डेथ सेल 10/12 का इनका है, और ओपन फैसिलिटी जिस तरह वहाँ पे किया जा रहा है, तो वो बहुत बड़ा एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और चाहे वो अटक जेल हो, चाहे वो अडियाला हो, चाहे कोई भी मेन बड़ी जेलें हो, दूसरी हो, मेरे लिए सब कैदी जो हैं बराबर हैं, काबिल इज़्ज़त है। मेरे लिए कोई मैं क्योंकि हमारे लिए कोई वीआईपी हो या वीआईपी ना हो, वीआईपी अल्लाह की ज़ात है, मतलब अल्लाह के सामने है कौन वीआईपी है। मगर अगर उनके कोई राइट्स लिए जा रहे हैं, मैंने तो वैसे भी वहाँ का दौरा करना है, क्योंकि ख़ास तौर पे मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है जेल्स के अंदर, जब से मैंने मिनिस्ट्री संभाली है। मगर उसके साथ साथ जहाँ तक कश्मीर की तहरीक की बात है, वो इस पोर्टफोलियो की बात नहीं है, वो तो हमारी ज़िंदगी है। तो ये एक छोटा सा मौका मिला है, थोड़ा सा टाइम है कि मैं अपनी सर्विस जो है पाकिस्तान को भी थोड़ी बहुत इंटरफेथ हारमनी के हवाले से जहाँ बात हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को जिस तरह हिंदुस्तान में टारगेट किया जा रहा है, वहाँ कम से कम 40,000 से ज़ायद जो है जो डेटा स्टेटिस्टिक्स हैं कि मोदी के इन 2 टेन्योर्स के अंदर जो इबादत गाहों को टारगेट किया गया है, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे मस्जिदों को शहीद किया गया है, वहाँ पे चर्चेस को बर्न किया गया है, वहाँ पे गुरुद्वारों को अटैक किया गया है। तो वहाँ पे तो मतलब कि इतना एक्सट्रीम लेवल पे स्टेट की तरफ से फुल सपोर्ट है हिंदुत्व के नैरेटिव का, और जो जेलें जो उनकी भरी हुई हैं कश्मीरियों से, और वहाँ पे भरी हुई हैं उनके इनसे जो माइनॉरिटीज़ के वहाँ पे लीडर्स हैं, या जो वहाँ पे तहरीकें चल रही हैं। मणिपुर में आप देख लें क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वहाँ पे, यूपी के अंदर जो गुजरात की अंदर 500 से ज़ायद मस्जिदें हिंदुस्तान मोदी ने वहाँ पे शहीद करवाई। तो वहाँ का तो हालात ही जो है कि दुनिया में सारे रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के उन्होंने क्रॉस